Start with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum. My name is Farkhunda and seat number is 14. And today my presentation topic is Teacher is Counselor, and it's assigned by Saramjad Ali Arain. The teacher is a counselor. So today we will look specifically at the teacher's role as a counselor, and in particular we will talk about what is counseling, what is a counselor, what are the qualities of a counselor, and the teacher is a counselor. What is counseling? So counseling falls under the umbrella term talking therapies and allows people to discuss their problems and any difficult feelings they encounter in a safe, confidential environment. The term can mean different things to different people, but in general, it is a process people seek when they want to change something in their lives or simply explore their thoughts and feelings in more depth. So, basically, counseling is a process that involves two peoples. One is the counselor who offers counseling services, and the other is person wanting help और काउंसलिंग. सो काउंसलिंग को हम टॉकिंग थेरेपीज़ भी कहते हैं कि मतलब बातों ही बातों में वो थेरेपीज़ जो हम करते हैं, जो काउंसलर करता है कि क्या बातों ही बातों में कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है. किसी मतलब काउंसलिंग वो है कि किसी भी एक इंसान को कोई प्रॉब्लम से, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में उनकी क्या प्रॉब्लम्स है जो कि वो किसी एक इंसान के साथ कैसे शेयर कर सकता है, ताकि जब वो उस काउंसलर से अपने वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करे तो वो काउंसलर उन बातों को गौर से सुने और उनको फिर सॉल्यूशंस बताए, उनको एडवाइस दे. तो ये जो बेसिकली है दो लोगों के दरमियान में होता है. एक है काउंसलर जो कि एडवाइस देता है या हेल्प करता है, और दूसरा हम बोल सकते हैं क्लाइंट जो जिसको मदद चाहिए, जिसको एडवाइस चाहिए. What is a counselor? A counselor is a person who provides counsel to another person who is usually in some position of need or requires help. A counselor is a person whose job is to give advice to people who need it, especially advice on their personal problems. As a verb, the counsel can mean to give guidance or to give advice. तो काउंसलर एक ऐसा शख्स है, वो एक ऐसा पर्सन है जो काउंसिल प्रोवाइड करता है एक दूसरे इंसान को, उस इंसान को जो जिसको हेल्प चाहिए, जिसको प्रॉब्लम है किसी चीज़ में, तो वो काउंसलर जो हेल्प दे रहा है और जो क्लाइंट जिसको हेल्प चाहिए. तो काउंसलर का जो काम होता है वो होता है लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना, उसकी प्रॉब्लम्स को फिर एडवाइस देना और उसके एंड में उसके सॉल्यूशंस बताना और उसको अप्लाई करवाना. तो बेसिकली काउंसिल का मतलब जो है, या तो उसको गाइड करें या तो उसको एडवाइस दें. क्वालिटीज़ ऑफ अ काउंसलर. अ काउंसलर इज़ a good listener, pleasant and warm, showing empathy, kind and caring, understanding, positive and motivating, communicator, trustworthy and reliable, self-aware and sensitive to other needs, interested in helping others achieve their personal goals and encourages growth, a source of information and advice, and able to inspire confidence in others. The first one is a counselor is a good listener. It is important for you as a counselor to be a good listener, as this skill is the basis for being able to assist your pupils in solving their various problems. तो बेसिकली काउंसलर के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी लिसनिंग पावर, उसकी लिसनिंग स्किल इम्प्रूव नहीं होगी, बिल्डअप नहीं होगी,
तो वो अपने क्लाइंट के जो प्रॉब्लम्स है वो गौर से सुन नहीं पाएगा, उसकी लिसनिंग में प्रॉब्लम होगी, आधी अधूरी बात सुनेगा, फिर उसको उस तरह की वो एग्जैक्ट एडवाइस नहीं दे सकेगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है एज अ काउंसलर कि आपकी जो लिसनिंग की जो स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए, आप गुड लिसनर होने चाहिए, ताकि आप जब अपने क्लाइंट के प्रॉब्लम सुनो, गौर से सुनो और पूरी बात सुनो, ताकि एट द एंड आप उसको एडवाइस दे सको और उसके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बता सको। And number two is a counselor is a pleasant and warm. Being pleasant and warm, it is very important to meet someone who gives you a warm welcome, listens and talks kind words to you. This relieves tension and makes the person feel appreciated and that someone cares. By being warm and pleasant to the pupil, you will have established a base for good working relationship with the pupils. तो एक काउंसलर को है प्लेजेंट और वार्म होना चाहिए, खुशगवार होना चाहिए। ये ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी को वेलकम एक अच्छे मूड में, एक बहुत ही अच्छे तरीके से किसी को वेलकम करते हैं, उससे अच्छे तरीके से उसकी बात सुनते हैं बहुत ही गौर से और बहुत ही काम तरीके से उसको फिर आप समझाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है एक काउंसलर के लिए कि वो बहुत ही प्लेजेंट और वार्म होना चाहिए, कि जो पर्सन है, जो क्लाइंट है, वो थोड़ा रिलैक्स फील करे, वो उसको एक अप्रिशिएटेड होता है और उसको फील होता है कि एक्चुअली समवन इज़ जो उसकी बातों को गौर से सुन रहा है और कोई केयर कर रहा है। तो इस क्वालिटी से क्या होता है कि जो प्यूपल्स के साथ या क्लाइंट्स के साथ एक अच्छा बेस जो है बन जाता है, अंडरस्टैंडिंग का रिलेशनशिप बन जाता है कि जो है काउंसलर जो है एक बहुत ही खुशगवार है, हम इससे कोई बात शेयर कर सकते हैं और जो काउंसलर है वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सुनेगा, हमें सॉल्यूशन देगा, हमें एडवाइस देगा। एंड थर्ड इज़ अ काउंसलर इज़ empathetic. Showing empathy, this means you have the ability to understand what your pupils or any other person with a problem feels and why they feel that way. Reassure by affirming that you understand what they are going through. तो एक काउंसलर को है एम्पैथेटिक होना चाहिए, हमदर्द होना चाहिए, ताकि जब वो उसके क्लाइंट्स उससे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, उनको लगे कि जो हमारा काउंसलर है, हमारे सामने जो इंसान बैठा है, वो हमारी प्रॉब्लम्स को फील कर रहा है, उनको वो चीज़ समझ में आ रही है, जिस चीज़ से हम गुज़र रहे हैं वो एग्जैक्टली उनको समझ में आ रहा है। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर काउंसलर एम्पैथेटिक है, हमदर्द है, तो उसको वो एक्चुअली एग्जैक्टली वो चीज़ समझ में आ जाएगी जिस चीज़ के थ्रू वो इंसान गुज़र रहा है। तो इस वजह से फिर वो क्या होता है कि वो काउंसलर जब उसको अच्छे तरीके से उन चीज़ों को समझ जाता है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ लेता है अच्छे तरीके से, फिर उसको एट द एंड वो अपनी सलाह देता है, वो उसको सॉल्यूशंस बताता है कि किस तरह उसको कैसे वो चीज़ें अप्लाई करनी है। तो इसलिए एक काउंसलर को एम्पैथेटिक होना चाहिए। टीचर इज़ अ काउंसलर, वो जो हमने पढ़े वो थे हमारे क्वालिटीज़ ऑफ काउंसलर। अब हमारे पास है टीचर एज अ काउंसलर। तो नंबर वन इज़ रेफरल एजेंट। द टीचर्स मेन जॉब इज़ टू टीच। In addition to his teaching, a teacher may also advise their students regularly on matters of concern to them. This is a natural function of a class teacher. तो टीचर की जो मेन जॉब होती है वो तो होता है टीच करना, स्टूडेंट्स को पढ़ाना, लेकिन उसके अलावा भी वो टीचर अगर हम देखें तो हमारे पास जितने भी टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, हर एक टीचर रोज़ाना कोई ना कोई एक एडवाइस ज़रूर देकर जाते हैं कि आपको, या फिर किसी एक बच्चे को बोलेंगे जो कि थोड़ा वीक है, उसको बोलेंगे कि आप यहाँ पर वीक हो, आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो टीचर पढ़ाने के अलावा जो रेगुलरली बेस पे हमें किसी ना किसी बात पे, फिर वो पढ़ाई के हवाले से हो या फिर कोई स्टूडेंट्स के या फिर कोई
मसले मसाइल होते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है, तो फिर टीचर उन चीज़ों पे एडवाइस देता है स्टूडेंट्स को। तो ये एक नेचुरल बात है जो टीचर करता है। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट रेफरल एजेंट। टीचर को जो टीचर एज अ काउंसलर है वो रेफरल एजेंट कैसे होता है। सेकंड इज़ अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। Children who receive treatment from specialists remain in the same classroom. Hence, the teacher is in better position to understand his or her behavior. Of course, his effectiveness in this role will depend upon this training and experience, his flexibility, his willingness to try understand the behavior of children, and the amount and kind of help he gets from the guidance staff. तो जो एक टीचर होता है उसकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब वहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर किसी के बिहेवियर में चेंजेस होती हैं, ऑब्वियस सी बात है ये। तो अब किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के साथ कोई इशू चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो टीचर को पता है कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, बहुत अच्छे से क्लास में उसकी परफॉर्मेंस है। तो सडनली कुछ दिनों से उसका बिहेवियर थोड़ा डाउन सा लग रहा है, वो क्लास में एक्टिव नहीं हो रहा, क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो टीचर फ़ौरन से नोट कर लेगा कि इस बच्चे के साथ डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टीचर को पता है कि वो पहले किस तरह से क्लास में रहता था और अब सडनली उसके बिहेवियर को क्या हो गया है। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ के टीचर जो है एज अ काउंसलर, वो उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स की उसके बिहेवियर के साथ टीचर्स बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि कौन सा बच्चा इंटरेस्टेड है, कौन सा बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब वो उनकी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्टूडेंट्स की, फिर वो अपने मीटिंग्स रखते हैं उनके पेरेंट्स के साथ, ताकि उन प्रॉब्लम्स को वो डिस्कस करे और फिर उनका कोई सॉल्यूशन निकाले। थर्ड इज़ रेगुलर एडवाइस। The class teacher is in a better position to understand the abilities, interest, and weakness of his students in relation to the subject of study. Consequently, he can advise subjects in choosing subjects or help the counselor in the guidance and counseling process. तो टीचर ये एक ऐसा इंसान है जो ऐसी पोजीशन पे होता है, जो पढ़ाने के साथ साथ अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग का पता होता है उनको, अपने उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं, उनके इंटरेस्ट कहाँ हैं, और वो किस जगह पे इंटरेस्ट है, किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस चीज़ में वो ज़्यादा वीक हैं, या फिर किस सब्जेक्ट में उनकी ज़्यादा कमांड है। तो अगर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को चूज़ करना होता है सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट्स में से उनको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, तो वो उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो किस तरफ जाएं, तो वो अपने किसी ऐसे टीचर के पास जाते हैं जो उनको लगे कि ये हमें एडवाइस दे सकता है, और और उनको लगे कि हम इनसे रिलैक्स होके, कॉन्फिडेंट होके, काम होके इनसे बात कर सकते हैं। तो उन टीचर्स के पास जाते हैं, उनसे एडवाइस मांगते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, हम यहाँ पर स्टक हो गए हैं। तो वो जो टीचर होता है फिर उस चीज़ के मुतालिक स्टूडेंट्स को गाइड करता है, काउंसल करता है कि आपको मतलब वो देखता है पहले के स्टूडेंट्स, क्योंकि उसको पता होता है कि वो स्टूडेंट की किस जगह में ज़्यादा कमांड है, तो फिर उस मुताबिक उस स्टूडेंट को वो गाइड करता है, एडवाइस देता है। फोर इज़ टीचर इज़ अ लिंक। The class teacher can successfully act as a link between parents and community members on the one side and school guidance committee on the other. He can make parents aware of the services available in the school and encourage them to take advantage of these services for the benefit of their children. तो एक टीचर होता है जो कि लिंक रखता है स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ भी, ताकि स्टूडेंट्स के जो रिपोर्ट है
वो उन तक पहुंचा सके, स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स है वो उन तक पहुंचा सके। फिर उसके साथ साथ क्या होता है, जब उनकी मीटिंग होती है, वो मीटिंग अरेंज करते हैं स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट पेरेंट मीटिंग होती है जो, तो वहाँ पे टीचर सिर्फ टीचर के रोल से नहीं होता, वो एज अ कम्युनिटी मेंबर भी होता है, जो कि स्कूल की तरफ से वो एक गाइडेंस कमेटी का मेंबर हो जाता है। तो वो स्कूल में जो जो सर्विसेज उनकी अवेलेबल होती हैं, जो जो उनकी सर्विसेज होती हैं, फिर वो उन चीज़ों से वो उन पेरेंट्स को आगाह करते हैं कि ये सर्विसेज मौजूद हैं, आप चाहें तो अपने बच्चों को इन चीज़ों के लिए इनकरेज कर सकते हैं, ताकि फिर वो उन चीज़ों का एडवांटेज उठा सकें और स्टूडेंट्स को कोई अच्छा फ़ायदा हासिल हो। तो टीचर इज़ अ लिंक इसलिए है कि टीचर अपनी जो है स्टूडेंट्स की रिपोर्ट भी उन तक उनके पेरेंट्स तक पहुंचा सकता है। ये एक लिंक है कि टीचर उनके पेरेंट्स तक हर बात पहुंचा रहा है, स्कूल में कोई एक्टिविटीज़ है वो उन तक पहुंचा रहा है। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट टीचर इज़ अ लिंक। तो दिस इज़ व्हाट के एक टीचर को काउंसलर की तरह अगर होना चाहिए तो उसमें फिर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट अबाउट टीचर एज अ काउंसलर। थैंक यू।